अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। वालेकुम अस्सलाम मिस। जी मिस 4C नहीं है इसका। यस 4C एक्सरसाइज है। today we are going to start exercise 4D. Okay, or you have to do in a CP notebook, that is your HP1. Okay, now in this, who is joining? Okay. Now we are starting how to factorize. In exercise 4A, you did product of the following, right? And exercise 4B, you did how to expand by using formula, and you have done three formulas: a plus b whole square, second one is a minus b whole square, and third one is a plus b minus b. a plus b or a minus b is equal to a square minus b square, right? In next exercise, we did how to factorize, right? The expression into formula form. Now in exercise 4D again we have factorization method. So here we will not use any formula. We will have two or more terms. For example, in first term you have 2xy plus in second term Exercise 4 भी है. 4 uh, 4y, right? 4D exercise 4D. This is the explanation of exercise 4D, right? So first you have to understand by example, right? Now if we have how many terms we have? Two terms. First term, this is your second term. Up you have to factorize, means there is no round bracket. You have to put round bracket by taking acha something is common or same in both the term. Which thing is common? Either variable or coefficient. Which thing is common? Tell me. Yes, tell which thing is same. By saying the terms, something is same. Why? Huh? Teacher, variable. Variable is same. Which variable? X and y. Y is here and y is also in second term, right? So it is clear, y is same. Also one thing is also same, number, that is called coefficient. Number which is written with variable is called coefficient. So coefficient is also same, लेकिन 2 is here and in second term 4. तो ऐसा टेबल देखें जिसमें दोनों टीचर तो डिवाइजेबल हो. टीचर यस आपने जो एक्सरसाइज 4C में लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 ही करवाया था ना जी. क्वेश्चन तो उसका आपने कौन कौन से पार्ट करवाए थे? That was your assignment number 11. Part number. उसमें कौन उस 7 क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट करवाए थे आपने? I'm telling you. Part number I think C and D. C and D. तो टीचर जो दिन आपने सी और डी करवाए थे ना उस दिन टीचर आपका नेट का बहुत इशू कर रहा था, उस दिन हमें नहीं दिख रहा था. बेटा आप दोबारा करवा दें. Question number 7 is same as question number 3. You can factorize it according to question number 3. Only variables are same fraction में, as you did in question number 3. Mariam, you have done? क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? Okay, now we'll come to question number exercise 4D. I am telling you कि वेरिएबल के अलावा एक चीज और सेम है, that is number.
तो ये देखें ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 and 4 आर डिवाइजेबल? 2, right? So here 2y is taking common factor, right? So bracket start. अच्छा, method is कि जो rule है वो ये है कि whatever you are taking as a common factor, you will divide by each term also. तो हम इसे each term से divide भी करेंगे, जो हमने common लिया है उसे each term से divide भी करेंगे. Whatever we have, how many terms we have? तो 2y divide हो जाएगा plus 4y upon 2y, bracket close, right? Now in next step, do the cancellation. How it will cancel? 2, say 2 cancel, and y will also cancel from numerator to denominator. So what thing is remaining? Miss, What thing is remaining first term? Yes. First term, what thing is remain? Mariam, you tell which thing is left after cancellation. भाई 2 से 2 कैंसिल, y to y कैंसिल, x same here, plus copy down plus and 2 1 the 2, 2 2 the 4, y to y cancel. What thing is left now in second term? 2. 2. So that is your answer. That's how you have to do. ठीक है, this is the method. ये रफ कॉलम है. This is just an example. Copy down this example also. उतार ले इसे. ये जो रफ कॉलम एग्जांपल उतारनी है. नहीं आप उतार ले, वहां पर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी. First you copy down this example. सबसे पहले जब हम लोग ये क्वेश्चन लिखने से पहले हम लोग एग्जांपल लिखेंगे. जी एग्जाम्पल लिखें, पहले एग्जाम्पल लिख लें, देन राइट डाउन क्वेश्चन. टीचर यस, टीचर जो एग्जांपल आपने लिखी है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पहले लिखेंगे ना. बिफोर कॉपिंग द क्वेश्चन 1. जी यस, बिफोर कॉपिंग द क्वेश्चन 1. ओके. Quickly copy down it, then I am going to explain part A. That is your explanation of exercise 4D. Same rule will be applied. No, by using nothing, there is no formula, right? Just you have to take out as a common factor. कोई नंबर देखे, कोई वेरिएबल देखे, अगर कॉमन है तो उसे आप एज ए कॉमन फैक्टर टेक आउट outside the bracket and each term से उसे divide भी कर दें. Now I am going to explain part A. Question number 1. Again, एग्जांपल भी लिखते हैं. example भी लिखनी है, उतार copy down it quickly. Okay, shall I start part A? Okay. Now, how many terms we have? How many terms we have? In part A, how many Miss, terms? 2. 2 terms. अच्छा, what thing is same in 2 terms? This is 45, this is 81. तो ऐसा टेबल देखें जिसमें 45 और 81 डिवाइजेबल हो. In which table both the numbers comes? 81 है. In which table 81 comes? 9 9 जा 9 9 जा और ये 9 9 4 जा 9 4 जा 45. तो 9 आपने देख लिया कि 9 is that number. Now see the variable. We have different power of the variable. Here x square, in second term we have x to the power 1. So we see if we have different power of the variable,
then we see the least power of the variable. ठीक है, least एक्स वाई वेरिएबल. अब देखें 2 है यहाँ 1 है पावर, तो अब यहाँ कंफ्यूजन होगी. अब कौन सी पावर? 1 तो 1 1 पावर ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल इज x. x आपने x टू द पावर 1. ठीक है, 1 डोंट शो 1. ठीक है, उससे फिर कंफ्यूजन हो जाती है. नाउ ब्रैकेट स्टार्ट. अब बड़ा सा ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, राउंड ब्रैकेट, राइट, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग ऑल्सो. तो 45 एक्स स्क्वायर ओपनली लिखिएगा, स्पेस दे देंगे. 45 एक्स स्क्वायर अपॉन 9x. जो आपने कॉमन फैक्टर लिया है उससे ईच टर्म से यू हैव टू डिवाइड थ्रू आउट. माइनस 81 एक्स वाई अपॉन 9x. देखें 9x is dividing first term also and 9x is dividing second term also. ब्रैकेट क्लोज. ये ब्रैकेट की जो लिमिट है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन में टिल इन द सेकंड लाइन, राइट. समझ रहे हैं वन लाइन, ला रहे हैं better leave one line, right. Now do the नहीं ऐसे cancellation. 9x bracket close. अब do the cancellation. Start your cancellation. See how I'm doing the cancellation. 9 1 the 9. Number 2 number कर लें पहले. 9 how many times it will cancel? How many times it will cancel? In table of 9 how many times comes? 9 4 जा, यहाँ लिखिए 4, right. x और ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, राइट. तो व्हाट थिंग इज लेफ्ट इन फर्स्ट टर्म हियर आफ्टर डिवाइडिंग 4, और ये x खत्म कैंसिल हो गया, ऊपर x स्क्वायर था. तो हाउ मेनी x आर रिमेनिंग? 1x और 2x. भाई x स्क्वायर है, is cancelling by this 1x. So what remain now? What thing is left now? Yes, Mariam, you tell. X. X, only X. See here. मैं आपको रफ में भी करके बता रही हूँ. See. ये देखें, x स्क्वायर और x, ये 2x थे, ये एक x कैंसिल हो गया, तो व्हाट थिंग इज लेफ्ट? एक x बचा, ठीक है. 4x माइनस साइन एज इट इज. 9 1 9, 9 9 81. ये 9 इज लेफ्ट, राइट. x और x कैंसिल, तो व्हाट थिंग लेफ्ट विद 9? व्हाट थिंग इज लेफ्ट विद 9? X. नहीं, x इज कैंसिल. x तो कैंसिल. Y. You found who is joining? Hamza. only y Y. only y Y. Bracket close. This is Yes, your Miss. answer. It's so easy. In 2 or 3 steps, answer is coming. Right? We have solution of 2 and 3 steps. देखें. In 1 step, first you have to see the common factor. यानी ऐसा पहले नंबर देखें कि जिसमें ये 81 और 45 दोनों डिवाइड होते हो, वो एक टेबल होगा, वो आपने खुद देखना होगा, ठीक है. और उसके अलावा आप देखें वेरिएबल, इफ एनी वेरिएबल इज सेम. एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ एक्स है, राइट. तो यहाँ पर आप लीस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल लिखेंगे एक्स टू द पावर 1. अब ब्रैकेट स्टार्ट. नाउ ये आपने निकाल लिया 9x. अब ये इस टर्म से आपने थ्रू आउट द टर्म डिवाइड भी करना है, उसे हर टर्म से आपने डिवाइड कर दिया. इन नेक्स्ट स्टेप रीराइट इट. रीराइट इसलिए कर रहे हैं फॉर कैंसिलेशन. Asad is also joining. Why you are coming late, bhai, in the class? Hamza. Okay now. अब आपने ईच टर्म से डिवाइड भी कर दिया. ओके, नाउ डू द कैंसिलेशन. अब ये कैंसिलेशन करना आपका काम है. 9 1 9, 9 4 x 2 x कैंसिल, 2x से एक x कैंसिल हो गया, तो 4x is remain minus 9 9 81, x 2x cancel, 9y. This is your answer. अब इन दोनों को प्रोडक्ट करें
प्रोडक्ट मीन्स एक्सपेंड द ब्रैकेट, यू विल गेट द सेम थिंग। सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका। देखें 9 4 जा 45 एक्स स्क्वायर, ये आ गया, माइनस 9 9 का 81 एक्स वाई, सेम थिंग इज कमिंग राइट। यहाँ पर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट लाना है क्वेश्चन में। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड राइट। अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, यही सेम मेथड ग्रेड 10 8 में भी है, 9 और 10 in both classes, right? Those who have joined late, please copy down it quickly. We are doing factorization, right? After that, copy down part B. Quickly part B you copy down, and you also write copy down with me. समझते भी जाए और उतारते भी जाए। Part B now. Over there. What is part in part B? See, ये है 39xy माइनस 15 एक्स स्क्वायर जी। और जरा राइट विथ ओपनली, स्पेस दे दे के लिखे, क्योंकि आपको कैंसिल, यू हैव टू डू द कैंसिलेशन आल्सो। फिर वो आपको सब मिक्स हो जाता है, जो समझ नहीं आता है। नाउ पार्ट बी सॉल्यूशन। मैं सब इसी लाइन में लिख रही हूँ, आप तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, बिकॉज आई वांट टू सेव माय स्पेस। यही स्पेस है, इसी में कंप्लीट करना है। 39 एक्स वाई माइनस 15 एक्स स्क्वायर जी, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी हैव? 3 टाइप्स। देखिए here in first term एक्स वाई, इन सेकेंड टर्म एक्स जी, ठीक है। तो एक्स वाई जी, वी हैव 3 वेरिएबल here. Now see the common factor, कॉमन नंबर को कहेंगे फैक्टर, ठीक है। ऐसा टेबल देखें जिसमें 39 और 15 दोनों डिवाइजेबल हो, फ्रॉम विच टेबल बताइए, यू टेल फ्रॉम विच टेबल 39 और 15 इज डिवाइजेबल इन स्क्रीन अटक गई है आपके। थोड़ा वेट करें, वेट अ सेकेंड। Now it's okay, it's fine. स्क्रीन अटक गई। ब्लैक हो गई है। ब्लैक हो गई? मैं सब ब्लैक आ रही है स्क्रीन। अच्छा वेट वेट वेट, देखिए आप ये अपने माइक ऑफ करें। ओके, नाउ यू कैन सी इजीली। यस मिस। ओके नाउ सी, ऐसा नंबर देखें इन दोनों में, वी हैव 2 टर्म्स हियर अगेन राइट। जो इस दो ऐसा टेबल देखें जिसमें 39 और 15 आर डिवाइजेबल। Which table? In which table? 15 comes in which table? 3 2, it does not divisible by 2. It does not come in table of 2. तो 3 देख ले, 3 में नहीं आता तो 4 देख ले। वही इसी तरह से चेक करते हैं ना। 3 5 से 15 और 3 से ये भी डिवाइजेबल है। 3 1 का 3 और 3 3 का 9, 13 times. It is divisible by 3 or not? You can take as a common factor 3. You can take or not? Ayan, Mariam, Ayan, you tell first. It is divisible by 3 or not? आपकी स्क्रीन अटक रही है। पार्ट बी।
पार्ट बी। की स्क्रीन अटक रही है। यस टीचर आपका नेट सही नहीं चल रहा है इसलिए आपकी स्क्रीन अटक रही है। बेटा वेट अ सेकंड, हु इज दिस माइस? इधर स्क्रीन भी बहुत ब्लर आ रही है। So beta, you there is no problem. We have fixed everything. Hafsa, इधर आपकी कितनी अटक रही है स्क्रीन? Hafsa, you tell. Hafsa, you tell beta. You are getting properly, Asad? और ये हमजा is also. आपकी स्क्रीन अटक रही है। Okay, I do something. बेटा you see again. Wait करें थोड़ा. अपने turn off your mic. Turn off your mic. Now you can see the board properly. You can see the screen. Hafsa, you tell. Hafsa, Mariam. अब स्क्रीन ब्लैक आ रही है। अब तो बहुत अटक रही है। अब ब्लर भी बहुत आ रही है। तो बेटा यू डू योर सेल्फ, यू कैन डू सी। एक आपको समझा दिया, एग्जाम्पल समझा दी, पार्ट ए समझा दिया, अदर पार्ट्स यू कैन डू बाय द सेम मेथड, सेम मेथड विल बी अप्लाई, यू कैन डू योर सेल्फ। मरियम यू टेल। हमजा, असर 39 सिर्फ 15 डिवाइडेबल है 3 से, 39 नहीं है। तो 3 के टेबल से नहीं होता, 3 1 3 3 9, तो 3 यू कैन टेक एज अ कॉमन फैक्टर। 3 नंबर आपने देख लिया, 3 से हो गया। और वेरिएबल देखे, सी द वेरिएबल, विच वेरिएबल इज सेम हियर, x to the Z here x to the power 2, x x only x to the power 1, right? So 1, no need to mention 1, just write x, right? वो 1 is understood. Now bracket start, बड़ा सा ब्रैकेट स्टार्ट कर दे। बड़ा सा क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शन में ये डिवाइड नहीं होगा, पूरा न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर आपकी लिमिट होनी चाहिए ब्रैकेट की, राइट? अब इस टर्म से डिवाइड कर दे। किसको डिवाइड करना है? 3x को। थ्रू आउट डिवाइड बाय 3x, यानी 39xy डिवाइडेड बाय 3x माइनस 15x स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 3x, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। Have you understood first step? This is your first step. Ayan, you tell now. Ayan, Hamza, you are understanding? आपकी स्क्रीन अटक गई। कोई फर्क नहीं बेटा, मेंशन योर नेम। आपकी स्क्रीन एक जगह ही अटक गई। अच्छा 7 के बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। सही तो है। स्क्रीन क्या हुई? वो कह रहे हैं यस, स्क्रीन इज क्लियर नाउ, टेल मी। yes है yes क्लियर? तो बिफोर दैट व्हाट द प्रॉब्लम? क्या आपको Yes, miss. आपकी अब सही आ रही है? पहले आपके ना सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे
और स्क्रीन भी इतनी ब्लर आ रही थी, आपका नेट भी बहुत इशू कर रहा था, स्क्रीन भी अटक रही थी आपकी। हमारा नहीं है, आप सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है बेटा। वहाँ आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, यहाँ से तो एवरीथिंग इज नहीं राइट। नहीं टीचर, आप बोलते हैं आपकी नेट का प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ना आपके ना सिग्नल्स वो शो हो रहे हैं, तो उसमें सिग्नल्स में ना अभी वो आ रही है येलो, अभी येलो सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका नेट सही है, अभी सही आ रहा है आपका नेट। अगर उसमें रेड आती है तो आपका नेट बहुत इशू करता है। तो अब है ना, अब आ जाए वापस इस क्वेश्चन पार्ट पर। थैंक यू। यस, ओके, ये समझ में आ गया। 3x, व्हाई डिड यू टेक 3x एज अ कॉमन फैक्टर? टेल मी। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, आयान बताएं। Yes, teacher. ओके, ये तो मरियम, दैट इज मरियम, आई एम आइसक्रीम टू अयान। अयान, डिड यू गेट फर्स्ट स्टेप? आपका अंडरस्टूड? ब्लैक स्क्रीन आ रही है, अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। रीराइट इट, इसके बाद आप रीराइट द सेम स्टेप, रीराइट द सेम स्टेप। Rewrite, why we are rewriting? Because for cancellation, इसी स्टेप पे हम नहीं करेंगे, in next step upon 3x। now start to cancel, अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3x as it is, start bracket now 3, how I am cancelling? by 3, 3 1 the 3, Hafsa you are getting? Hafsa, 3 1 the 3, अब देखिए how it is cancelling, 3 1 the 3, 3 3 the 9, तो what thing is left after cancellation? जाके स्क्रीन अटके। थोड़ा वेट कर ले, अब क्लियर हो जाता है, बाद में वो जो सही आ रही है टीचर, सही आ रही है, नहीं अटक रही। आते थोड़ा एक सेकंड रुक जाए आप, ठीक है। अब देखें 39 कैसे कैंसिल होता है, यूं कैंसिलेशन नहीं समझ में आए तो यूं डिवाइड करके देख लेना। अब 39 को 3 से डिवाइड करें इन रफ कॉलम, 3 1 जा 3 कैंसिल, 9 उतारे, 3 3 जा 9, आ गया 13, ये देखें 13, अंडरस्टूड? ठीक है। अब x देखें, सी, x टू x कैंसिल, व्हाट थिंग इज लेफ्ट विद 13? व्हाट थिंग इज लेफ्ट? 13 के साथ क्या बचा? व्हाट थिंग इज लेफ्ट नाउ इन फर्स्ट टर्म? ये अभी फर्स्ट टर्म है ना, क्या बचा आपके पास? मरियम यू टेल नाउ, असाद यू टेल, गिव रिस्पॉन्स। टीचर 3 को 15 से कैंसिल करेंगे तो 5 रह जाएगा। अभी हम इसकी फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, अभी हम 15 से नहीं कर रहे हैं। वाई Why, miss? ठीक है। अब आप आ जाए सेकंड टर्म पे, सेकंड टर्म किया, 3 3 5 जा मिस 5 बचेगा। 5 बचा, जो कैंसिल होके आया वो बच गया आपके पास। अब देखें ये एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, वहां पर ऊपर न्यूमरेटर में 2x है, इन डिनोमिनेटर 1x, तो ये डिनोमिनेटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो व्हाट थिंग इज लेफ्ट? X, एक्स, एक्स और only X, जी जी Z। आंसर कुछ भी नहीं है, ओनली 2 स्टेप है, उसके बाद फिर आंसर आ गया। ओके, अंडरस्टैंडिंग और मिस ये आसान है बहुत। बहुत आसान है ये, ठीक है। अब आ जाए पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर सी। क्विकली कम ऑन पार्ट नंबर सी बिकॉज ओनली 9 मिनट्स आर लेफ्ट। पार्ट नंबर सी, सी उतारे आप जल्दी से। those who has joined late quickly copy down, I am going to erase this part A। अब इसका टाइम में वेट नहीं कर सकती, टाइम इज शॉर्ट। सी, आई एम राइटिंग सी पार्ट, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई थी कि एग्जाम्पल से पहले आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। नाउ पार्ट नंबर सी इज एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। बी केयरफुल इन पुटिंग द पावर, ठीक है, नो मिस्टेक इन द पावर। ओके, नाउ come to give heading of solution quickly। अब मैं
इसी लाइन में लिख रही हूँ सोल्यूशन की, आप तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। आई वांट टू कंप्लीट द होल सोल्यूशन इन दिस स्पेस। स्पेस नहीं होता हमारे पास। माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नाउ सी what is your first in first step you have to take common factor, right? In first step you have to take common factor क्या होता है? The thing which is same, right? पहले तो नंबर देख लें, यहाँ there is no coefficient. Number means coefficient, वो नंबर जो विद वेरिएबल के साथ आता है, that is called coefficient. ये there is no coefficient, कोई नहीं है। मिस वाई स्क्वायर। अब सी द वेरिएबल यहाँ पर है एक्स वाई स्क्वायर जी, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स वाई और एक्स वाई, ओनली एक्स वाई आर सेम, वेरिएबल आर सेम। और कौन से वेरिएबल है? एक्स एंड वाई। नाउ वी हैव डिफरेंट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो लीस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखते हैं जिसकी सबसे कम स्क्वायर एक्स और वाई। यहाँ देखते हैं एक्स वन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स टू द पावर वन आ गई। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वहां वाई क्यूब है, तो वाई, तो लीस्ट पावर किसकी है? स्क्वायर की, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ स्टार्ट ब्रैकेट, नाउ डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स वाई स्क्वायर, वही सेम रूल रखेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉमन फैक्टर, ये आपका कॉमन आ गया। अब डिवाइड करें, जरा ओपनली लिखिएगा स्पेस देकर, क्योंकि कैलकुलेशन में ही आप लोग मिस्टेक करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। अब आप रीराइट फॉर कैंसिलेशन, ये तो हमने इस टर्म से डिवाइड कर दिया, इसी में डिवाइड नहीं करना है, रीराइट इट। एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, एक्स वाई एज इट इज। नाउ डू द कैंसिलेशन, सी हाउ आई एम कैंसिलिंग, एक्स टू एक्स कैंसिल, डू द कैंसिलेशन विथ पेंसिल, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो आपका। अब देखें वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसिल, ऊपर भी वाई स्क्वायर है, नीचे भी वाई स्क्वायर है, पूरा कैंसिल हो गया। व्हाट थिंग इज लेफ्ट नाउ? फर्स्ट टर्म, what thing is left? Asad, you tell. Quickly tell. What thing is left? एक्स स्क्वायर। X नहीं, x square नहीं, x cancel, y square cancel. What thing मिस is जेड स्क्वायर सॉरी। exactly? Now minus sign as it is. Now इधर अब सेकंड टर्म में do जेड स्क्वायर। ये x और ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक x बचा, 1x इज लेफ्ट, यहाँ लिख ले 1x। यस मिस, एक एक्स बच गया जी। अब यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर इस क्यूब से मिस एक वाई बच जाएगा। एक y बचेगा, एग्जैक्टली y1 y इज लेफ्ट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। हाउ इजी इट इज, राइट? नाउ पार्ट, कम टू पार्ट डी क्विकली, वी हैव 3 मिनट्स नाउ। पार्ट डी पर आ जाए। दिस इज डन, चलो इरेज दिस थिंग कर दूं? यस मिस। ओके नाउ अयान यू आर फॉलोइंग? यस मिस। अयान यू आर फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस। ओके नाउ पार्ट डी उतारें जल्दी से। पार्ट डी में क्या है? व्हाट इज इन पार्ट डी? 15 पार्ट डी माइनस, अच्छा माइनस स्टार्टिंग विद माइनस साइन 15। अब बताएं ये वर्ड दिस थिंग, एक्स क्यूब वाई माइनस 10 now give heading of solution, copy down it quickly, जल्दी से कर लें। क्या लिखा बेटा आपने 15 के बाद? बेटा यू डोंट हैव बुक, बुक खोले तो बुक है लेकिन ये इसे क्या कर रहे हैं? ये है क्या चीज? आई एम कमिंग टू द पॉइंट, आई एम कमिंग। बेटा तो क्या करना है, एन बना के उसके ऊपर निशान डाल देना है। एन नहीं है, एन नहीं है, दिस इज कॉल्ड फाई। यू हैव डन
this thing in grade 6 also. This is called phi. Phi or नहीं phi. हमने ये नहीं किया। ये किया, इसकी वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड पाई, दिस इज एंड इट्स वैल्यू इज 22/7. ज्योमेट्री में वी हैव ऑलरेडी डन इन ज्योमेट्री इन ग्रेड 6. अब भूल चुके होंगे आप लोग, तो 2 दिन के बाद की चीज भूल जाते हैं. तो ये तो ग्रेड 6 की थी. ग्रेड 6 में हमने प्रॉब्लम किए थे सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल. तो उसमें हमने यूज दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड पाई. It is a Greek letter and its value is 22/7. Numerical value is 22/7. पढ़ा था। जी. अब आप आ जाए इधर. ये दिस इज कॉल्ड पाई. कुछ नहीं है, सिर्फ अब आपने उन्होंने आपको एक वो सिंबल दे दिया है, राइट, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए. अब आपने देखना है कि सी द कॉमन फैक्टर. पहले तो नंबर देख लें. You have 15 or 10. बताइए 15 or 10 in which table it comes? In which table 10 and 15 comes? In table of 5. ठीक है, तो यहाँ आपने कॉमा, अच्छा माइनस साइन है, माइनस साइन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -5. ये तो पता चल गया, -5 इज कॉमन, -5. ठीक है. अब देखें पाई एंड है पाई, ये भी आपने ऐसे बाहर कॉमन फैक्टर जो सेम है वो एज ए कॉमन फैक्टर यू टेक आउट आउटसाइड द ब्रैकेट एंड वी हैव x क्यूब एंड हियर x क्यूब. तो x क्यूब इज आल्सो सेम, so you take out as a x cube as a common factor. Now bracket start. Here y and we don't have y in second term, तो y तो कॉमन नहीं है. ये चीज सारी आपकी कॉमन थी in both the terms, in first term as well as in second term. So this thing is same. Divide each term by this thing, -15 pi x cube y upon -5 pi x cube, or same there. Asad, you are solving. Bracket close. Now rewrite it. इसे rewrite करें. -5 pi x cube, bracket start. See, minus plus. Solve the sign. Minus plus according to algebraic sign rule. 15 pi x cube y upon 5 pi x cube माइनस, अगेन देखें सी, माइनस प्लस, ये साइन प्लस हो गया. 10 पाई एक्स क्यूब अपॉन 5 पाई एक्स क्यूब, ब्रैकेट क्लोज. डू द कैंसिलेशन क्विकली, कैंसिल इट. देखें, आई एम कैंसिलिंग 5 on the 5, 5 3 is 15. What left after cancellation? What left now? Quickly tell. We have only 1 minute. At any moment we will be disconnect. Okay, so complete it. 3 pi to pi cancel, x cube to x cube cancel. So 3